हमने देखा कि किस तरह से यूनिवर्स अराइज हुई और व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, दैट इज बिग बैंग, विच इज अ वेरी फेमस थ्योरी एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स। उससे पहले कुछ भी मालूम नहीं था यूनिवर्स के बारे में। एंड इस साथ के साथ ही हमने देखा कि इन व्हाट मैनर सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड एंड हाउ अर्थ ओरिजिनेटेड, एंड ऑल दिस हैपेंड नियर अबाउट 4500 millions of years ago or 4.5 billion years ago, and the life arose near about after the origination of earth, we can say after 500 millions of years ago life started after the origination of earth, और हम कह सकते हैं कि near about 4 billion years ago or 4000 millions years ago earth life was formed, and there are various theories which are presented by different scientists from time to time regarding the origination of the earth। बहुत सारी theories हैं, लेकिन कुछ एक जो NCERT में दी गई हैं हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो first of all there was a theory that was presented by theory of spontaneous generation की हम सबसे पहले बात करेंगे। Panspermia even has been given first, we will talk it about it later on। तो first of all there was a scientist von Helmont ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रखा था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट लाइफ अरोज फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर से, जैसे कि जितने भी ये डिकेइंग मैटर है, मड है, स्ट्रॉ है, इससे लाइफ वाज स्टार्टेड, लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। एंड फॉर दिस दे did some experiment or they assume that they formed a hypothesis regarding this theory। उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली कुछ hypothetical formation की, जैसे कि if we take a muddy cloth और a cloth having sweat, जिसमें पसीने वाला cloth है, तो उसमें से what happens, mice they originated, mice of both sexes can be originated। एंड इस थ्योरी को सेकंड करने वाला था साइंटिस्ट एरिस्टोटल। उसने भी कहा कि जितने भी ये लोअर फॉर्म्स है, जैसे फिश है, फ्रॉग्स है, इंसेक्ट्स हैं, माइस हैं, ऑल दी स्मॉल फॉर्म्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम दी नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली, नॉन लिविंग मैटर से ही अराइज हुई हैं। ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन इसको विश्वास नहीं किया जा सका बिकॉज सम ऑफ द साइंटिस्ट दे रिजेक्टेड दिस थ्योरी। तो फर्स्ट of all we should have what we should keep in mind, what is the theory of spontaneous generation। we start right with the theory of spontaneous generation regarding the origination of life। heading mein today we are going to start with origin of life, various theories, what we have to study, various theories जो मानी गई हैं according to NCERT। and life started originated near about 4000 millions years ago, और हम कह सकते हैं 500 millions years ago after the formation of earth, after the formation of earth। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये बहुत थोड़ी सी बिल्कुल जो एक थोड़े से एविडेंसेस के साथ प्रोड्यूस हुई और खत्म हो गई। इवन दे वर स्टॉप्ड, दे वर रिजेक्टेड बाय अदर साइंटिस्ट, बट दे आर फेमस। तो that is why they are explained in, they are mentioned in NCERT, and we should learn them also, we should also read them। तो first theory थी theory of spontaneous generation, was put forward by von Helmont। बहुत फेमस साइंटिस्ट था ये भी, और इसका नाम नहीं है NCERT में। and accordingly this is also related to theory of abiogenesis। abiogenesis जो कि most accepted theory है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका फॉर्मेशन ना अलग से है, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इससे भी उसी से ही मिलती जुलती ये थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी और उस थ्योरी में क्या डिफरेंस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्पॉन्टेनियसली और ऑल ऑफ ए सडन लाइफ वाज स्टार्टेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। एकदम से बहुत बड़ा ऑर्गेनिजम्स या लोअर फॉर्म्स में हम कह सकते हैं, जैसे कि माइस एटसेट्रा, दे वर
formed. But according to true abiogenesis theory is accepted on the basis of various chemical combination or series of chemical reactions that we will be looking at later on. Actual में theory of abiogenesis is something different from this. तो इसको हम we will be calling better it theory of spontaneous generation produced by von Helmont. उसने क्या कहा कि life originated all of a sudden from decaying matter such as mud and straw. We can say जितनी भी ये नॉन डिकेइंग मैटर है, मड है, स्ट्रा है, इसमें से लाइफ वाज स्टार्टेड. तो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द डिकेइंग मैटर, दैट मीन्स समथिंग इज लिविंग इज प्रेजेंट इनसाइड दैट मैटर दैट कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय वॉन हेल्मोंट. कुछ ऐसी चीजें यानी कि कुछ डिकम्पोज्ड माइक्रोब्स होंगे जिसको वो हेल्मोंट नहीं पहचान सका था, लेकिन उसने कह दिया कि मड एंड स्ट्रॉ से व्हाट हैपेंड, लाइफ इज स्टार्टेड. तो उसका बेसिस उसने दिया कि माइस originated, mice of both the sexes, male and female, both sexes were originated from sweat से, स्वेटनिंग ऑफ क्लोथ की बात कर लें, या हम कह सकते हैं कि कुछ स्वेटनिंग जिसमें पसीना था. उस क्लॉथ के साथ, उस स्वेटनिंग क्लॉथ के साथ जब वीट मिक्स किया, वीट मिक्स, थोड़ा सा वीट रखा, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर 20 to 21 डेज माइस वर डेवलप्ड. माइस दोनों के दोनों सेक्सेस के कैन बी प्रोड्यूस्ड. इसी तरह से एरिस्टोटल ने कहा, एरिस्टोटल ऑल्सो टोल्ड अबाउट दैट नॉन लिविंग मैटर से, ही ऑल्सो told that the mice, or we can say frogs, fish, insects can be produced. Frogs, fish, insects and mice can be produced from decaying matter. From एरिस्टोटल ने इसको सेकंड किया था, decaying matter. और ऐसा कहा जाता था कि मडी जो बॉटम है पॉन्ड्स का, वहां से टोड्स एंड फ्रॉग्स अराइज होते हैं. मडी बॉटम of pond give rise to frogs and toads. So all these are merely hypothetical and not experimentally proved. इनको ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया जा सका, and that is why there was another scientist. He came and whose name was Francisco Redi. Francisco Redi came in 1668 AD. में he came and he rejected this theory. Totally reject कर दिया. Many scientists they also rejected this theory because this was not possible. ये तो एक merely assumption थी ना, तो इस theory को एकदम से reject कर दिया गया कि life was not started like this, life was not originated like this as told by the scientist von Helmont. von Helmont ने जैसे कि बताया था, और उसने किसको forward किया था, किस theory को, theory of spontaneous generation को, जो कि एक छोटी form which is a little bit abbreviated, या हम कह सकते हैं small form कही जा सकती है abiogenesis की. Abiogenesis means non living material. लेकिन ये किसी और ढंग से प्रोड्यूस हुई और विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट समय में. जबकि अकॉर्डिंग टू एबायोजेनेसिस थ्योरी जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें तो बहुत टाइम लग गया था. लाखों करोड़ों और मिलियंस ऑफ ईयर्स वर फॉर्म्ड इन ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ दैट वी विल बी लुकिंग लेटर ऑन. बाद में हम देखेंगे कि कैसे अराइज हुई थी. तो फ्रांसिस्को रेडी ने इसको रिजेक्ट किया, एंड आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट rejected this theory of spontaneous generation and he started, उसने कहा कि उसने ही put forward the theory of biogenesis. Theory of biogenesis, what does it means? कि all the life arises from, आज सब पेन में is being, अभी
सो बायोजेनेसिस में थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ arose from प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. लाइफ पहले से ही एग्जिस्ट करती हुई लाइफ से ही अराइज हुई है, जैसे कि माना जाता है इसको भी. और अकॉर्डिंगली ही डिड सम एक्सपेरिमेंट, ही टुक सम फ्लैश, कुछ ऐसे मीट लिया उसने, एंड ही स्ट्रिक्टली बॉइल्ड देम इन ए जार, अच्छे से उनको स्टेरलाइज कर दिया, बॉइल कर दिया, सो दैट नो लाइफ कैन बी फॉर्म्ड. उसमें कुछ भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जो भी थे वो ऑल दे शुड बी किल्ड, वो मर जाएं. एंड व्हाट ही डिड इन 3 जार्स को उसने 3 वट एवर ही डिड कि जब मीट को 3 जार्स के अंदर रखा और बॉईल किया, एंड देन ही कवर्ड फर्स्ट जार प्लस स्टरलाइज फ्लैश और मीट विथ parchment क्लॉथ, parchment क्लॉथ से और पेपर से हम कह सकते हैं कवर कर दिया. सेकेंड जार प्लस स्टरलाइज फ्लैश अगेन और बॉइल्ड मीट को मुस्लिन क्लॉथ से कवर कर दिया, मुस्लिन क्लॉथ से, ठीक है. एंड थर्ड वाज ओपन, थर्ड जार ओपन, इट वाज ओपन हैविंग फ्लैश. जार था लेकिन इसमें फ्लैश भी था और मीट भी था हम कह सकते हैं, और इट वाज केप्ट ओपन. तो व्हाट हैपेंड, whatever is present inside the environment, environment में जितने भी germs होते हैं, bacteria, flies, or we can say maggots, whatever are there, they were never attracted towards these two. But when they entered into this open jar के अंदर एंटर किए, एंड दे स्टार्टेड लेइंग एग्स इनसाइड दिस फ्लैश, उनके अंदर एग ले किए, एंड द फ्लाइज वर फॉर्म्ड. वहां से फिर फ्लाइज निकलनी शुरू हो गई. तो व्हाट वाज द कंक्लूजन, दैट लाइफ अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये तो सब क्लोथ कवर थे, इनमें तो आने का सवाल ही नहीं था. फिर इनमें जब लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, क्लोथ जो जार कवर्ड थे विद द हेल्प ऑफ सम कवरिंग सच एज parchment पेपर, और हम कह सकते हैं मुस्लिन क्लोथ से, वहाँ लाइफ वाज नॉट स्टार्टेड. तो लाइफ वाज नॉट स्टार्टेड इन दिस, इसमें भी नहीं. लेकिन ओपन जार में मैगेट्स वर अट्रैक्टेड, मैगेट्स और फ्लाइज वर अट्रैक्टेड and they lay eggs, and life again after some days छोटे छोटे फ्लाइज निकलने शुरू हो गए, they started coming out of this open jar. And what was this proof? It proved that life arises from pre-existing life. Life जो है पहले से ही प्रोड्यूस हुई है, एनवायरनमेंट में स्पोज है, जिसके कारण लाइफ अराइज हुई है, ठीक है. वो एग लेइंग मैगेट्स कह सकते हैं, या फ्लाइज, और वट एवर इज प्रेजेंट इन साइड द एनवायरनमेंट इज गिविंग राइट टू न्यू लाइफ, ठीक है. तो ये तो स्मॉल एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए थे. अब इसके बाद देयर वाज ए फेमस साइंटिस्ट हुज नेम वाज, हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था पास्चर का. उसने भी सेकंड किया, एंड ही आल्सो सपोर्टेड दी थ्योरी ऑफ फ्रांसिस्को रेडी. उसने भी कहा कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, एंड द सेम एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड बाय हिम. व्हाट ही डिड, ही टुक ए स्वान नेक, एक ऐसा फ्लास्क लिया, जैसे कि एक फ्लास्क लेते हैं ना, उस फ्लास्क में उसने जो कवरिंग थी ना, उसको ऐसे स्वैन शेप फ्लास्क में, ही टुक सम यीस्ट ले लिया, एंड sugar material was there, and it was preheated, sugar material, and it was preheated and totally under the sterilized condition. तो ये एक्सट्रैक्ट, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट प्लस शुगर, हमें मालूम है यीस्ट इज ए सॉर्ट ऑफ ए यूनिसेलुलर फंगस, एंड इट न्यूट्रिएंट मीडियम इज व्हाट इज शुगर न्यूट्रिएंट मीडियम पे ये डिपेंड करती है. तो उसको फ्लास्क को जब उसने प्री हीटेड, एंड दिस इन दिस स्वान शेप्ड नेक, व्हाट हैपेंड, इवन द लाइफ even if there are bacteria or microbes present in the environment, they will come and they will be entrapped inside this. यहाँ पे entrapped हो जाएंगे. और even what he did, उसने यहाँ से ना उसको कवर कर दिया,
कवर करने के बाद आफ्टर सम डेज ही सॉ देयर वाज नो लाइफ एरोज, कोई भी लाइफ नहीं हुई, बट व्हेन ही ब्रोक देम, इसको ना ब्रोक कर दिया आफ्टर सम डेज, एंड देन व्हाट ही डिड, he saw some of the bacterias, microorganisms, they have entered and they have rotten this all these things, वो सब जो भी present था उसके अंदर, and they started rotting them, और these bacteria or germs were clearly visible, और because they were attracted towards this nutrient medium, इस nutrient medium की तरफ आए और attract हो गए, but in open और जो फ्लास्क जिसका नेक ब्रोक कर दिया था उसमें वो अट्रैक्ट हुए, अदरवाइज व्हेन इट वाज क्लोज्ड नो सच काइंड ऑफ बैक्टीरियाज और जर्म्स वर विजिबल इनसाइड द फ्लास्क, नहीं हुए थे विजिबल। तो अगेन बाय दिस केयरफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉइस्चर ने जो भी फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट किया था, और इट वाज प्रीहीटेड था, स्टरलाइज था, और दिस एक्सपेरिमेंट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फ्रांसिस्को रेडी, और जब इसके अकॉर्डिंगली व्हेन ही रीच द सेम कंक्लूजन एंड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज रिजेक्टेड परमानेंटली, ऑलवेज उसके बाद ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी गई, एंड बाद में व्हाट हैपेंड, देयर वाज सम अनदर थ्योरी जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले देयर इज वन मोर थ्योरी दैट इज लेफ्ट, थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, वो भी मेंशन की गई है हमारी बुक में, थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, और जिसको हम कहते हैं कॉस्मेजोइक थ्योरी, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंगली there are some spores like structures, they are responsible for the arising of life on some planet, and these spores they are present in the universe and they are reaching to the planets including the earth, and they are forming the life को वो बना रहे हैं, and these spore like structures or panspermias are cosmozoic in nature, spores यानी कि कॉस्मोजोइक मीन्स दे आर प्रेजेंट इन स्पेस में से आते हैं प्लैनेट्स में, बट इसका भी एक बहुत सॉलिड व्यू नहीं था, बिकॉज स्पेस में तो इतनी एडवर्स कंडीशंस हैं, समटाइम्स देयर इज वेरी लो टेम्परेचर, समटाइम्स देयर आर वेरी ड्राई कंडीशंस, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन्स आर देयर, तो इन व्हाट मैनर स्पोर्स दे केप्ट देमसेल्फ सर्वाइव अंडर सच एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स कंडीशन को उन्होंने अपने आप को कैसे सर्वाइव किया होगा, तो ये भी एक अजम्पशन है थ्योरी का, बट इट वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, Richter was a scientist who proposed it, and it was also supported by some another scientist that I tell you, Arrhenius. Richter ने propose किया और Arrhenius ने इसको support किया था कि लाइफ कहाँ से आती है, आउटर स्पेस से आती है, supported it, and all this was in 1865 के आसपास, ठीक है, 1865 AD। थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया मीन्स लाइफ स्पेस में, यूनिवर्स में स्पोर्स की फॉर्म में है, और वो प्लैनेट्स पे कैसे आती है, स्पोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो लाइफ स्टार्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस की कुछ एडवर्स कंडीशंस के कारण ऐसा माना ही नहीं जाता कि स्पोर्स वायबल हो, तो दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अ वेरी फेमस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड O'Brien-Hildon theory, and it was also experimentally proved by Miller and Urey। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, 10th क्लास में, लेकिन अब एक बार फिर से हम इसको रिकैपिचुलेट करेंगे, थोड़ा सा और इसका ब्रॉडर आउटलुक देखेंगे कि किस तरह से थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इज अप्लाइड एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर साइंटिस्ट।